दिल्ली, जहां पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनते हैं। 71 to 76. Now I am reading out the names. Chhattisgarh, Jankir Champa SC, Dr. Shivkumar Daharia. Chhattisgarh State, Korba, Mrs. Jyotsna Magans. Chhattisgarh 6, Rajnandgarh, Bhubesh Baghel. Chhattisgarh Durg, Rajendra Sahu. Chhattisgarh Raipur, Vikas Upadhyaya. Chhattisgarh Mahasamud, Tamaruddin Sahu, Tamarध्वज Sahu. Karnataka Bijapur SC, HR Algor. Karnataka Haveri, Anand Swami Gaddevara Math. Anand Swami Gaddevara Math. Karnataka Tumkur, SP Muddana Megowda. Karnataka Mandya, Venkat Ramegowda, Star Chandru. Karnataka Bangalore Rural, DK Suresh. Shimoga, Srimati Geeta Shivraj Kumar. Hassan, Shreyas Patel. Then Kerala, Kasargod, Rajmohan Unital. Kannur, K. Sudhakaran. Vadagara, Shafi Parambil. Wayanad, former Congress President Sri Rahul Gandhi. Kozhikode, Sri M.K. Raghavan. Palakkad, Sri V.K. Srikantan. Alathur, Mrs. Ramya Haridas. Miss Ramya Haridas. Thrissur, K. Muralidharan. Chalakudi, Binni Bahanan. Ernakulam, Haibi Eden. Idukki, Dean Kuriakose. Alapura, Sri K.C. Venugopal. Mavelikara, Kodikundal Suresh. Pathanamthitta, Anto Anthony. Attingal, Adur Prakash. Thiruvananthapuram, Dr. Shashi Tharoor. Lakshadweep, Muhammad Hamdullah Said. Shillong, Meghalaya, Vincent H. Pala. Meghalaya Tora ST, Saleng A. Sangma. Nagaland, S. Supong Maran Jamir. Sikkim, Gopal Chetri. Telangana Sahirabad, Suresh Kumar Shatkar. Telangana Nalgonda, Raghuveer Kundru. Telangana Mahbub Nagar, Chella Vamshachandra Reddy. Telangana Mahbub ST, Belram Naik Porika. Tripura West, Ashish Kumar Sahe. This is the 39 names. You can give me English, Hindi. फीडबैक देने के लिए आपका अभी आपके सामने केसी वेणुगोपाल जी ने 39 लोगों की कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा करी है। जैसे इन्होंने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं कि 39 में से 14 जनरल हैं,
और 15 जनरल हैं और 24 इसके अंदर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज हैं। और इस लिस्ट के अंदर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, सीडब्ल्यूसी के पूर्व हमारे सदस्य ताम्रध्वज साहू जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी भी हैं। तो ये लिस्ट जो है एक मिश्रण है अनुभवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, युवाओं की, संगठन के अंदर जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से निकल करके आए हैं उन लोगों की, और जमीन से जुड़े हुए नेताओं की। और हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की गारंटी की घोषणा लोगों के पसंद के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंडिडेट्स सक्षम हैं कि इन गारंटीज को राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में आगे पूर्ण करें। अभी 3 न्याय की मुख्यतः बात करी है, किसान न्याय, हिस्सेदारी न्याय और युवा न्याय। युवा न्याय को 5 अलग अलग वर्गों के अंदर भरोसे के तौर के ऊपर कहा गया है। भर्ती का भरोसा कि 30 लाख नौकरियां सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग करेंगे, देंगे। एक पब्लिश्ड जॉब कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर बनाया जाएगा और उसी के आधार के ऊपर 30 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां हमारी सरकार में आते ही हम लोग देंगे। पहली नौकरी पक्की, अप्रेंटिसशिप के लिए एक कानून मनरेगा के तौर के ऊपर बनाया जाएगा। इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। पेपर लीक से मुक्ति, इस बात का भी भरोसा कांग्रेस पार्टी देती है। गिग इकोनॉमी को सामाजिक सुरक्षा दी जाए, जो कि आजकल एकदम से नहीं है, नहीं के बराबर है। कानूनन इनको सामाजिक सुरक्षा दी जाए, इस चीज की भी गारंटी। और युवा रोशनी के लिए कांग्रेस 5,000 करोड़ का कॉर्पस बनाएगी ताकि पूरे देश भर में युवाओं का देखभाल किया जा सके। तो मैं समझता हूं कि ये पहली लिस्ट अच्छी लिस्ट है। आप सब लोगों को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई और महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी बहुत बहुत बधाई। Now this is the list decided by yesterday's CEC under the presidency of Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji. We are discussed the seats of the states Kerala, Karnataka, Telangana, Chhattisgarh and Delhi and Lakshadweep yesterday. Next CEC meeting is on 11th. Whenever the next seat is going to be decided, we will let you know the names of the candidates. That's what I am telling. Wait for the list because of states. No, that I already answered all that questions. और चलिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोहन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरा उनसे इस बारे में बातचीत करना चाहेंगे। अनिल, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से भी अपनी पहली लिस्ट की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली एआईसीसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से पेशी की गई और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कांग्रेस की तरफ से 39 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है। इन 39 नामों की लिस्ट की अगर बात करें, सबसे अहम जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी भी घोषणा कर दी गई है। राहुल गांधी एक बार फिर केरल से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा अगर बात करें पूरी की पूरी लिस्ट की, अगर बात करें इस 39 की लिस्ट में अगर बात करें 15 सामान्य वर्ग से, वहीं 24 एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक से है। यानी कांग्रेस की तरफ से तमाम समीकरण यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट की अगर बात करें, पहली लिस्ट में राहुल गांधी के अलावा छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो राजनांदगांव से उम्मीदवार होंगे, उनके नाम की घोषणा कर दी गई। इसके अलावा शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है, इसमें जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है
केसी वेणुगोपाल उनके नाम की भी घोषणा कर दी गई। रायपुर से अगर बात करें, विकास उपाध्याय को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया। वहीं कोरबा से ज्योत्सना महंत को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। जी अनिल, बिल्कुल साथ ही साथ क्योंकि देखिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट यहां पर जारी की है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए तो अब मुकाबला अगर देखा जाए तो कितना दिलचस्प यहां पर हो सकता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो कांग्रेस की तरफ से लिस्टों की घोषणा की गई है, जो पहली लिस्ट है, हालांकि बड़ी भारी भरकम लिस्ट नहीं है, 39 ही उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आज से जो शुरुआत है लिस्टों की, महाशिवरात्रि के पर्व से घोषणा जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई। जो आज घोषणा की गई है जिसमें छत्तीसगढ़ की 6 टिकटें हैं, छत्तीसगढ़ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस ने कर दी है। इसके अलावा कुछ सीटें कर्नाटका की है। ज्यादातर जो आज की अनाउंसमेंट है उसमें ज्यादातर जो घोषणा की गई है वो केरल को लेकर की गई। इसके अलावा मेघालय, तेलंगाना को लेकर भी कांग्रेस की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई। अब से कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर दी है। बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है 195 नामों की। बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो आने वाले 1-2 दिनों में होगी। 10 तारीख को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। बीजेपी उसके बाद जो एक बड़ी लिस्ट है, एक और लिस्ट अपनी जारी कर देगी, और कांग्रेस की तरफ से भी आज अपनी पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई। अब आगामी कई दिनों तक जो टिकटों का दौर है वो जारी रहने वाला है। बिल्कुल, चलिए एक बार हमारे दर्शकों को हम वो लिस्ट दिखाना चाहेंगे टीवी स्क्रीन पर। अनिल मोर, आप हमारे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट कांग्रेस ने यहां पर जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी, 39 उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है। क्योंकि देखिए बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी हुई थी, और उसके बाद ये लिस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कांग्रेस की आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो चलिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़े हुए हैं। अनिल, वायनाड की बात करें तो राहुल गांधी को यहां से उम्मीदवार यहां पर घोषित किया गया है, क्योंकि देखिए बीजेपी लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाना साधती हुई नजर आ रही थी कि कांग्रेस आखिर कब जो लिस्ट है वो जारी करेगी। अब लिस्ट जारी हो चुकी है, और एक और अगर राहुल गांधी की बात करें तो किस तरीके से इसको देखा जा सकता है? देखिए बिल्कुल, राहुल गांधी एक बार फिर केरल से चुनावी मैदान में होंगे। वायनाड से राहुल गांधी चुनावी मैदान में रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की फिलहाल अगर बात करें, क्योंकि राहुल गांधी फिलहाल भी केरल से सांसद है और एक बार फिर वो चुनावी मैदान में रहेंगे। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, जब टिकटों की अनाउंसमेंट की गई तो पत्रकारों की तरफ से सबसे पहला सवाल यही पूछा गया था केसी वेणुगोपाल से, कांग्रेस के नेताओं से, कि राहुल गांधी की घोषणा केरल से तो कर दी गई है, कि क्या राहुल गांधी यूपी से भी चुनावी मैदान में होंगे? यूपी की चाहे अमेठी की बात करें, रायबरेली की बात करें, क्या उनमें से किसी एक और लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में होंगे? हालांकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस पर कोई जवाब तो नहीं दिया गया, लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में होंगे, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राहुल गांधी यूपी से भी चुनावी मैदान में होंगे? क्योंकि पिछली बार भी राहुल गांधी दो लोकसभा सीटों से लड़े थे। इस बार भी इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि राहुल गांधी केरल के साथ साथ यूपी से चुनावी मैदान में रहेंगे। यूपी से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की जो अनाउंसमेंट है वो केरल के वायनाड से की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।